Supriya Devastari to the dais. Comrade L.K. Salvi, President of All India Civil Accounts Association to the dais. Comrade E.A. Janardhanan, Secretary General, All India Civil Accounts Association, Category 2 to the dais. Shri Sandeep Uke, respected Control of Accounts CPDT, Mrs. Supriya Devastari, Deputy Control of Accounts CBEC, Comrade Janardhanan, Comrade Salve, and my dear comrades. We are all working in small units. Resultantly, we don't get any welfare facilities or recreational facilities in our offices. Perhaps the civil accounts is the only department where field officers are denied the welfare and recreational activities. Of course, some of our POs in CPEC and CPDT are getting to certain extent welfare measures from the departments because they are also considered as part and parcel of those departments. But majority of our members are denied the welfare and recreational facilities. That is the reason why the associations have taken a decision to stage this type of events. As you know well, this is not the first time we are having the cultural meet. Earlier also, 2 occasions we had similar programs. But this time, we are holding this program in the banner of the Coordination Committee of Civil Accounts, Employees and Officers Associations. Today, we have with us Shri Sandeep Uke, respected Control of Accounts, CBDT. On behalf of all of you, I welcome Shri Uke to this function. I request Mrs. Kalavati to offer a bouquet to Shri Sandeep Uke. We have Mrs. Supriya Devastari with us. We extend a warm welcome to her on behalf of all of you. I request Mrs. Shalini Prabhu to offer a bouquet to Mrs. Devastari. I would like to say a few words about these 2 officers. When we have national level meetings of the associations, we always point out, show Bombay as a model station as far as civil accounts is concerned. Because in Mumbai, we have a very cordial atmosphere in all our offices without much of the frictions. That may be because of the atmosphere created by the authorities. Not only authorities, each and every one of us, including the staff and office, are also responsible for that. These 2 officers, Mr. Uke and Mr. Devastari, they have been very cordial towards the associations. Whenever we approach them for any of our problems, they always extend warm welcome. They have a positive outlook to settle our problems. I take this opportunity to thank Mr. Uke and Mr. Devastari. Personally, I on behalf of the Coordination Committee for their goodwill and their positive approach in solving our problems. I don't want to take much of your time. We have a lot of cultural programs here for your enjoyment. Now, I request Shri Uke to formally inaugurate this cultural meet by lighting the traditional lamp.
मंच पे आसीन मेरे दोस्त, साथियों और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम 3 सेवा संस्थाओं सिविल अकाउंट्स, पीओस, डब्ल्यूओस और स्टाफ एसोसिएशन का कर्मचारियों का मिला जुला कार्यक्रम है। ऐसी एकता दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों को याद होगा कि गत वर्ष भी हमने इसी स्थान पर सिविल अकाउंट्स दिवस मनाया था। इस अवसर पर सारी संस्थाओं के सभासदों ने सह परिवार हिस्सा लेकर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम साझा किए थे, सचमुच प्रशंसनीय थे। आशा है इस साल भी हम लोग इसी जोश और उत्साह को से भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस तरह के सामाजिक उत्सव का छोटे से लेकर बड़ों तक को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस तरह के कार्यक्रमों द्वारा उच्चाधिकारियों एवं सेवा कर्मियों के संबंध सुधर सकते हैं तथा लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के अतिरिक्त अपने अंदर छिपी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। कहते हैं कि दुनिया सिकुड़ती जा रही है, अर्थात आर्थिक व सामाजिक संबंध पुराने जमाने के गांव तक सीमित न रहकर सारे विश्व तक फैल चुके हैं। आज अमेरिका के बाजारों में गिरावट आने के कारण सीधा असर सारी दुनिया पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही अत्याधुनिक तकनीकों के कारण सरकारी कर्मचारियों के समक्ष अनेक चुनौतियां मुंह बाहर खड़ी है। आज का सरकारी कर्मचारी अपने आप को बहुत तनावपूर्ण महसूस करता है। इस तरह के सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कर्मचारियों का मानसिक तनाव दूर करने की क्षमता होती है। नए उत्साह के साथ वे चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से मनाने जाने चाहिए और इन कार्यक्रमों में चित्रपट के गीतों और नृत्यों के अतिरिक्त खेलकूद तथा सामाजिक नाट्यों का भी सम्मिलित किया जाए तो उससे कम से कम हमारे पीढ़ी के बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में याद दिलाई जा सकती है कि जो संस्था अपने सभासदों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है, वही इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सभासदों में छिपे गुणों को आपके सामने प्रदर्शित करती है। मैं तहे दिल से उपरोक्त तीनों संस्थाओं का प्रशंसक हूँ। यद्यपि मैं संस्था की आय और अन्य लाभों के संघर्ष में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं हो सकता, पर इतना जानता हूँ कि अकाउंट कर्मचारी सुधारित आय के हकदार हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इन शब्दों के द्वारा मैं आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Mr. Now, I request Mrs. Supriya Devastali to enlighten us with her few words. Mrs. Supriya Devastali. Respected Controller of Accounts and dear colleagues, till I came here, I was not aware that I have to speak here, but nevertheless, I am used to speaking and I like to speak. I am grateful to all the organizers of today's program for having given me an opportunity to be here with all of you to witness a good cultural program. I must mention this thing here that for the first time I have heard Sandeep Uke sir speaking in chest Hindi, and now I am really ashamed of myself to talk in English after he has spoken in such good Hindi. I feel such cultural programs are very important in our life to give boost to our morale. Some of the people from my office may be knowing that I considered this idea last year. I was thinking of having such a cultural meet for all the POs in Mumbai. That time that idea could not materialize, but I am glad that in my tenure in Mumbai I am able to witness such a program. Because as we all know that 1/3 of our day's time is spent in our offices. We all work together, sometimes fight together, sometimes don't work together. So major part of the day is spent together, and besides work there have to be some activities which can keep us going. Work is always there and we all know that we have to do it. But besides that, to boost our morale, to keep us happy, and also get an opportunity to express our talents, our potentials, it is important to have such programs
I know of some really very talented people in our organization. I myself am benefiting by some of them, so I can say this with authority. So I am really glad that our organization has come up with such activity, and I also hope that we keep having such more activities and also expand on the activities as sir has already said. I wish all the today's performance all the best, and once again thank the association for having given me an opportunity to come here and share my thoughts with you all. Thank you. As you know well, we have conducted some competitions. Our idea was to conduct many number of events, but unfortunately due to the paucity of time, we could not hold much competition this year. But our planning is that in the coming year onwards, next year onwards, we will have large events, larger number of competitions, so that all of us can actively participate and win the prizes. Now I request Comrade Dinesh Shetty, the convener of our games committee, to come here and distribute the prizes. Mrs. Supriya Devasthana will be distributing the prizes. Mr. Shetty. Respected Controller of Accounts, Sri Sandeep Puke sir, Madam Supriya Devasthana Kolte, and Comrade Janardhan and Comrade Sali, and all comrades over here. The Coordination Committee of Civil Accounts Employees and Officers Association organized carom, singles and doubles events. There were 28 participants for singles event and 24 participants for doubles. In all, 3 winners in singles. That is, first hope that more and more people will take part in the next year so that we can organize many more events. It is quite natural that some are winners and some are many are losers. It is quite natural that some are winners and many are losers. But the winners are always happy. At the same time, I would like to mention that I thank all those who have participated in this event, as well as those who have helped to organize this event. Now I will announce the name of the winners one by one. They may come and collect their prizes. First of all, I will announce the name of the winners of the carom singers. The first prize goes to Comrade Avinash Patankar, CBEC, PO Central Excise Thana. Please give a big hand. Second prize, the winner of the second prize is KB England, PO Central Excise 2. Third prize winner is Datta Shemarkar, RPO Textile. Now I would like to announce the name of the winners of double. First prize goes to the team of Jitendra Sarli and Datta. The winner of second prize in carom is Srimati Rohini Sarvate, PO HRD, and the Fitil Library, RPO Textile. Please come and collect their prize. Please give them a big hand. With this prize distribution session is now over. I request Comrade Vigan to take over further. Now, see, with this photo thanks, inaugural session will be over, but the items which you are awaiting, cultural events will follow. So no one should go away. I request Comrade Sunil Kumar to propose photo thanks. With your help, we are conducting this cultural meet. First of all, I thank Sri Sandeep Puke, Chief Controller of Accounts, CPDT Mumbai, to consent come and inaugurate our function. Thank you, Sandeep Puke. Next, I thank on behalf of all of us, Madam Supriya Avasthali, Deputy Controller of Accounts, CBEC Mumbai, come and
address our gathering. Thank you, madam. Next, this function is successfully conducted under the convenership of our comrade Girijan and his staff PO Air. I thanks all staff of PO Air and comrade Girijan on behalf of all of us. I also thanks RTC and Putti Sab to facilitate to keep RTC open for our Saturday selection program. I thanks RTC staff also. I also thank PO Commerce. With the help of and cooperation of them, we could conduct so many sports items at our associate room at PO Commerce. I thanks PO Commerce and Textile for the cooperation extended to all of us. I also give thanks to our advertisers. With their help, only we can conduct this program. I also thanks all participants who has came during holiday also and given the rehearsal and conducted this program. Last but not least, you audience are enthusiasm for all of even our participants. I thank all our civil account fraternity members and all pay and accounts officers, all assistant controllers who has given cooperation to make this event a success. Thank you all. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। पर मंजिल तो कहीं दिख नहीं रही है और ये घनघोर अंधेरा, मैं अकेली। घबराओ नहीं, इस देश के करोड़ों लोग जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वो तुम्हारे साथ हैं। उन्हें साथ ले लो और अपनी आवाज बुलंद करो, मंजिल तुम्हारी कदम चूमेंगे। इतना बड़ा हमारा देश जहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, मैं उन्हें पुकारूंगी कैसे? बस इतनी सी बात। एक जवा है, एक भाषा है जो सारा देश समझता है। ये खून की तरह हमारी रगों में बहता है। यही तो है हमारा मंजिल का मूल मंत्र। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कल्चरल मीट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त जयंत और मैं आपका दोस्त उदय तलेकर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं यहाँ आने का और स्वागत करता हूं साथ ही साथ। और पिछले साल की तरह इस साल भी आपके सहयोगी आपका मनोरंजन करेंगे, भरपूर मनोरंजन करेंगे। आप उनका तालियों से स्वागत करेंगे, इतनी ही गुजारिश करूंगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत सभी कलाकारों की तरफ से, जिनकी अथक परिश्रम, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नियत रहे हैं, हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं, उन सभी की तरफ से मधुशाला की 4 पंक्ति के साथ शुरू करता हूं। विश्व तुम्हारे विस्मय जीवन में ला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी ये मेरी मदमाती शाखी वाला। सुन तुम्हारी घड़ियां कुछ भी यदि ये गुंजिश कर पाई, जन्म सफल समझेगी अपनी जग में मेरी मधुशाला। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के प्रथम प्रतियोगी अजय अलसेटे, सन ऑफ राजेंद्र अलसेटे। ये लेकर आ रहे हैं गीत। इनकी हौसला अफजाई के लिए आप सभी की तालियों की जरूरत है।
चाहिए चिड़िया जैसा हौसला। तो मेरे साथी जयंता जी कहाँ पर है? मेरा साथ देंगे वो तो बीच में छुप जाते हैं। अच्छा तुझे पता है शांति क्या है? शांति कौन है? हाँ, वो जो खुशी के साथ भाग गई थी वही। नहीं, वो शांति नहीं, वो शांति जिसे कहते हैं अमन, अमन चैन। आई मीन नो आतंकवाद, नो मारामारी, वही वही ना, घर घर में शांति, जन जन की शांति। सही सही कहा। हमारे देश की धरोहर है ये शांति, हमारे घर घर में बसती है, पर कभी कभी ग्रहण लग जाती है हमें। राष्ट्र की बात हो, प्रांत की बात हो, जन जन की बात हो, हम हमेशा एक रहते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं हमें बांटने की, उन्हें लगता है कभी हम सफल हो जाते हैं, पर नहीं। हमारी ताने बाने इतने मजबूत हैं, इतनी अच्छी तरह हम बुने हुए हैं आपस में, हमें अलग करना नामुमकिन है। और इसी नामुमकिन इरादे को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं एक समूह गीत लेके हमारे कलाकार। उनका जोरदार स्वागत कीजिए, आप सभी के हौसला अफजाई, उन्हें प्रोत्साहन देगी। ये पेश करेंगे महाराष्ट्र की।
लेकर तो दिल्ली गया था ना? दिल्ली हमेशा जाते रहता हूँ। फिर यहाँ कैसे कब पड़ा? नहीं, यहाँ पर प्रोग्राम है इसलिए मैं एक खास समय निकाल कर आया हूँ। अपना टूर छोड़ के आया। कैसा रहा? हाँ, मेरे साथ कुछ विदेशी पर्यटक भी थे, हम दिल्ली घूम रहे थे। हुआ क्या कि जब लाल किले के पास पहुंचे तो गाइड ने कहा ये रेड फोर्ट है। तो विदेशी पर्यटक बोला इतना सा, इतना बड़ा तो हमारा, इससे भी बड़ा हमारा पिज्जा होता है। आगे चलने के बाद हम पहुंचे पार्लियामेंट भवन के पास। गाइड ने कहा ये देखिए, ये हमारा संसद भवन, ये पार्लियामेंट है। फिर से वो विदेशी टपक पड़ा, इससे बड़ा तो हमारा बर्गर होता है। इतनी चिड़ा है कि उसके बर्गर ये कर दूं उसके मुंह पर। आगे चलने के बाद हम गए कुतुब मीनार के पास। उसने पूछा ये क्या है? मैं चिल्लाया ये ना तुम्हारे पिज्जा और बर्गर पर डालने की सॉस की बोतल है। हम लोग पक गए होंगे। चलिए, दिल्ली से हम लौट आते हैं यहाँ पे मंच पे, और बहुत गाने हो गए, अब थोड़ा नाचना पड़ेगा। मैं नहीं, कनद नायक नाचेंगे आपके सामने। अच्छा सा डांस प्रोग्राम करने वाले हैं कनद नायक। प्लीज वेलकम कनद नायक।
के को भी बुलाना चाहूंगा। तो क्या सोच रहा है? आज की 13 तारीख है, कल 14 तारीख है। 14 तारीख क्या है? वैलेंटाइन डे। हाँ, यही सोच रहा हूँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। तुम्हें कुछ आइडिया है इसका? नहीं, वैलेंटाइन डे के बारे में तो बहुत कुछ छपकर आता है, दिखाई देता है टीवी पर, रेडियो पर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन मैंने एक बात सुनी है जो आपको भी पसंद आएगी। 20 साल तक तो हर कोई आशिक होता है, और दुगनी उम्र हो जाए, 40 का हो जाए तो वो रसिक होता है, और 60 का हो जाने के बाद तो सिख होता है, और 80 की उम्र पार करने के बाद तो उस आदमी की इश्क मोहब्बत सब मानसिक है। बस 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 बस, रहने दे, सब लोग पक गए होंगे अभी तक। अभी रहने दे। अभी किसे बुलाने जा रहा है तू? अरे भाई, इतनी सारी तुम प्यार मोहब्बत की बात कर दी तो फिर समा परवानी की बात होनी चाहिए। हम ऐसे गाना सुनेंगे। आपका क्षमा मानने के लिए उत्तरा हिबारे पीओ सप्लाई से आ रही हैं, आप समा बांधने के लिए जोरदार तालियां। उत्तरा है बात।
बांधे रखा है। और ये समा बांधने के लिए अगला कलाकार आपके सामने आ रहे हैं, गजानन मेढेकर, जो प्रस्तुत करेंगे गोंधळ। गजानन मेढेकर, पीओ CPWD, आप इनका डांस का आनंद लीजिए और स्वागत कीजिए। इनके एक गोंधळ का से सुनिए, चांद की जुबा से सुनिए या तारों की जुबा से सुनिए, ये होती है मोहब्बत क्या। अगला कलाकार है हमारे बीच में लाइट आएगा ना, KJ सुजातन, रिटायर्ड PO कॉमर्स। इनकी इंस्पिरेशन के लिए आप सभी का प्रोत्साहन जरूरी है। रिटायर्ड PO में हमने नया टायर लगाया जरूर, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई रोक नहीं है। इनकी जो गीत है, इनका जो मोहब्बत भरा गीत है, मोहब्बत से सुनिए और मजा लीजिए। श्री KJ सुजातन। राजा
प्रेम का पढ़े तो पंडित तेरी तस्वीर को सीने से तेरी तस्वीर को सीने से तेरी हमने दुनिया से अलग मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने लेकिन आशीष को अंसार बनाया मैंने हरी बोल तेरा हमने दुनिया तूने मुझे हमने दुनिया दोस्तों बड़ी खुशी होती है जब हमारे सहयोगी बड़े बेखूबी से गाते हैं। खुशी की ज़बान दिल की धड़कन, खुशी की ज़बान दिल की धड़कन अगर समझ पाओ तो एक जैसी है हमारी दुआ।
तो अगला गीत 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 वो इतना गीत नहीं है, अभी हम बहुत देर बैठे हुए शांत हो गए, थोड़ा थिरकने की बारी आ गई। तो अभी एक डांस प्रस्तुत करने वाले जयेश और जयश्री सराफ। जयेश इंस्पेक्टर सीबीसी और जयश्री सराफ जेरेओ सीबीसी। बंदा ये बिंदास है, 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 बंदा ये बिंदास है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास 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 है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। ना 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 ना। बंदा है ये, बिंदास है ये बंदा है ये, बिंदास है ये। भवरा है ये योगी है, होशियार है, दो मखौटे इसके दो धारी तलवार है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। भवरा है ये योगी है, होशियार है, दो मखौटे इसके दो धारी तलवार है। चंपा चमेली के न सब रास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। खराब है सिर्फ जीने का हिसाब है, जादू है सर चढ़ेगा और जो गुजरेगी शराब है। बंदा ये बिंदास है, क्या बुरा और क्या खराब है, सिर्फ जीने का हिसाब है, जादू है सर चढ़ेगा और जो गुजरेगी शराब है। चंपा चमेली के न सब रास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास 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 है। रस पीने की प्यास है। अभी अगला बड़ा बिंदास, ज्यादा ही बिंदास है। बड़ा बिंदास है, अपने महबूबा के बारे में कहने आ रहा है कि उसकी महबूबा कितनी मस्तानी है। ये साहब है KB इंग्लिश, पीओ सेंट्रल एक्साइज 3। अभी झरनों पहाड़ों से गुजरेंगे, आप थोड़ा मजा लीजिए। जीने की राह बताने वाले।
जागते रहो, हमारे भरोसे मत सोना, नहीं तो तलेकर गाना सुनाएगा भी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ सीमा शिंदे जी को, जो एक दर्द भरा गाना पेश करेंगे। वही दर्द जो आपके दिल में उठता है, ये टिस ना हो तो जिंदगी में खुशी का कोई मजा नहीं है। अगर गम है तो खुशी है, और गम ही नहीं तो जिंदगी वीरान है। इसलिए गम को, बेदर्द को बुला रहे हैं, थोड़ा दर्द अपने दिल सीने से निकालिए और मजा लीजिए। सीमा शिंदे।
India Audit Accounts Employees Association to come to the dais. Comrade Janardhanan, Comrade Raja. Comrades, if I tell you that the young leader of Civil Accounts Employees Association, Mumbai, Comrade Janardhanan, has retired, you may be perhaps surprised. But it's a fact that in January he has turned 60 years young, and as per rules, he has to retire from government service. But one thing you should understand, he has retired from only government service, he has not retired from serving us. He will continue to serve us. I welcome Comrade Janardhanan to the dais. I request Comrade Chaurasia to welcome Janardhanan with a bouquet. Now Comrade Bhosle will welcome Comrade MS Raja with a bouquet. I think it will be a failure from our part. It will be a lapse from our part if we don't felicitate Comrade Janardhanan on behalf of all of you. I request Comrade MS Raja to present a shawl to Comrade Janardhanan. Give a big hand. King Love Zindabad. King Love Zindabad. Thank you, comrades. कोई गाना तो गाया, कोई अच्छा डांस दिखाया, किसने सालसा में लुढ़काया आपको। बड़ा ओवर खाबर जमीन हो गया भाई। थोड़ा लेवलिंग बहुत जरूरी है। कौन करेगा? आप से कोई करेंगे? Anyone of you? अरे हम तो आप में से ही हैं, आप हमसे हैं। हमारे भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा कविता ली आप सबके प्रिय श्री सोपान नागराले पियो। मैं उधर बैठा था तो बात ऐसी हुई कि वहाँ ठंडी लगती नहीं थी। मैं इधर देखा तो एक ख्याल था, वो भी चलता नहीं था। तो मेरे याद में एक ख्याल की याद आई। तो सुनो दोस्तों, मैंने एक पंखा लाया, घर लाकर खूब चलाया। ठंडी ठंडी हवा जो आई, नींद मुझे फिर जोर से आई। सपनों में आई एक राजकुमारी, नीली नीले आंखें वाली, लंबे लंबे बालों वाली। वह पास वो मेरे आकर बैठी, गले में बाहें डाल के बोली, मेरे प्यारे नगराले, तुम हो मेरे राजदुलारे। आओ तुम्हें आकाश दिखा दूं, आओ तुम्हें आकाश दिखा दूं, स्वर्ग में अपना महल दिखा दूं। सपना मेरा ऐसा टूटा, हीरा जैसा मेरा फूटा। मैं था जमीन पर लेटा, मैंने देखा फैन बंद पड़ा था, क्योंकि ये फैन नियमन था ना। तो दोस्तों आप ऐसे नहीं, इसलिए मैं भी जरा सिरियसली नहीं किया। एक मराठीमध्ये सांगतो, जे ठाण्याच्या पलीकडे राहणारे असतील त्यांना जरा कल्पना येईल, तर ती एक कविता। झुकझुक गाडी लागली गोडी, झुकझुक गाडी लागली गोडी, मुंबईचा रोड गाठलाय ग, सावर सल्ले लाईट गेली, मुंबऱ्याचा बोगदा लागलाय ग। नव नव लगीन झालं तरी, नव नव लगीन झालं तरी, राणी पायाची मुंबापुरी। नव नव लगीन झालं तरी, राणी पायाची मुंबापुरी। साडी नेसावी ती उभरदरी, मी सफार दिसतोय भारी। साडी नेसावी तू भरदरी, मी सफार दिसतोय भारी। कडा कडातून शिरवतो बोगदा, पदर तुझा हात भिजलाय ग, सावर सजने लाईट गेली, मुंबऱ्याचा बोगदा लागलाय ग, सावर सजने लाईट गेली, मुंबऱ्याचा बोगदा लागलाय ग। व्हेरी गुड। धक्के धक्के असे बसती, सारे करती रेटा रेटी। गाडी चढल्यावर धक्का धक्के असे बसती, सारे करती रेटा रेटी। चौथ्या सीटवर बस ग बाई, सावरून दाटी वाटी।
चाच पडतो खिसा कुणीतरी चोर इथे हात घुसलाय ग 6 वर्षात नाही काय कुणाचा बोधा लागलाय ग 6 वर्षात नाही काय कुणाचा बोधा लागलाय ग तो 4 मिनट दिया है मैं 4 मिनट का पूरा 4 मिनट में लाऊंगा तो कोई बुरा मत मानिए मैं सबको साफ करूंगा क्योंकि हर इसमें तो साफ नहीं आएंगे तो ये जितने डबल एओ है और मेरे जो कलीग है उनको सबको प्रणाम करते हुए एक कविता पेश करता हूँ तो गाली मत देना प्लीज। फसल में असफल किसान आत्महत्या करते हैं। फसल में असफल किसान आत्महत्या करते हैं। काम में बेदखल परब से लोग क्यों डरते हैं? काम में बेदखल परब से लोग क्यों डरते हैं? अगर परब गलत नहीं करते, सुनिए, अगर परब गलत नहीं करते तो पके बाद जैसे बूढ़े लगते हैं। अगर परब गलत नहीं करते पके बाद जैसे बूढ़े लगते हैं। अगर सामान, माफी चाहूंगा, अगर सामान तो गिरिजन मुझे रखते तो क्या सब लोग भाग जाते? अगर सामान गिरिजन मुझे रखते तो क्या सब लोग भाग जाते? सुनो भाई दोस्तों, अभी सुना है आपने? सुजाता की गीत सुनते ही आंखों में पानी आने लगा। सुजाता के गीत सुनते ही आंखों में पानी आता है। काम में बेदखल परब से लोग डरते हैं। आगे फरमाइश है, आलू का उपज नहीं होता तो आलू का अगर उपज नहीं होता तो राव साहब कौन सी सब्जी खाते? आलू का उपज नहीं होता तो राव साहब कौन सी सब्जी खाते? पाटिल सीधे सादे आदमी, पाटिल साहब है क्या? नहीं है। पाटिल सीधे सादे आदमी सबके नाक में दम लाते। आरपीसी में देखो, आरपीसी में रमन मुक्ति साहब कोणता पाठ पढ़ाते? आरपीसी में रमन मुक्ति साहब कोणता पाठ पढ़ाते? जनार्दन हो या गिरिजन, यूनियन चलाते होता है दुनिया का रंजन। दिनेश दुधे की कैसी दिल जमाई, मैथ्यू और सुगंधन लगते जैसे सौतेले भाई। फिर भी कई लोग इनके नाम से बेफिक्र रहते हैं। आप बोर हुए होंगे तो मैं जाता हूँ। और एक मराठी, झुई झुई वाऱ्यात पावसाच्या धारेत बाई माझ्या मनात कोण बोललं? झुई झुई वाऱ्यात पावसाच्या धारेत बाई माझ्या मनात कोण बोललं? निळ्या भात चांगल्याच्या वेगात बाई माझ्या झाडात कोण चिरलं? हरणीच्या चालीत वाऱ्याच्या वेगात बाई माझ्या सोबत कोण धावलं? कुहू कुहू करीत कोण सुरात बाई माझ्या सोबत कोण गायलं? थै थै करीत मोराच्या रूपात बाई माझ्या सोबत कोण गायलं? बहुत तो सारा है लेकिन आपका ज्यादा समय नहीं देना चाहता। हास्य कविता का बहुत सारा बाद में फरमाइश होगी, पीडी पब्लिक डिमांड तो आ जाऊंगा। धन्यवाद।